Okay, today we'll be talking about branches of linguistics. As you might remember, we talked about linguistics, or linguistics is the branch of science that studies languages. So, languages, whatever they may be, they are scientifically processed with the help of linguistics. As you can see, the word lingua stands for language and sticks is for study. So, although there are many ways we can study linguistic branches, but the most common that we can see on the screen right now is theoretical and applied linguistics. When it refers to theoretical linguistics, we already have gone through it. We talked about phonology, morphology, semantic, pragmatics, and syntax. However, there are two new words here today for us. One it relates phonetics, and the other says discourse analysis. On the right side, however, you can see the applications what a linguist can easily apply to understand certain phenomena in society, in psychology, in neuro, in ethnicity, in geolinguistics, and biolinguistics. इन simplest terms जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लिंग्विस्टिक्स की दोनों ब्रांचें अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं. But when it comes to language learning, you take lead by theoretical linguistics. When it comes to application of linguistics in different areas of subjects, you might be needing the applied form of it. Just to give you an example, just imagine a word saying hello. So if you go in the perspective of theoretical linguistics, you'll talk about its phonics. You'll talk about what sounds does it carry. You'll talk about consonant vowels. You will understand in pragmatics why does a word hello is spoken. And you will certainly identify in what kind of sentence it has been used. But when it comes to applied linguistics, we are interested to find what was going in the mind of the person when he used the word hello. So, hello is greetings. When you're greeting somebody, you're happy, you're welcoming. So the word hello is more of an expression right now. So psycholinguistics is a different field in which you would like to understand the personality, the situation, the psychological condition of that person. Likewise, if we are interested to know hello in social linguistics, you'll be intrigued to know that society has its own selection criteria, and the word hello in certain society is not acceptable. While in English culture, hello is a word that is well applied in the society. ये तो बच्चे हो गया इंग्लिश में जो मैंने आपको समझाना था, क्योंकि हमारे पास कुछ इंग्लिश वाले लोग भी हैं जो इंग्लिश को एंजॉय करते हैं. अब लेट अस टॉक अबाउट द सेम थिंग इन आवर ओन लैंग्वेज. अब अगर गौर करें इसके ऊपर, तो थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन थियरीज. और वो थियरीज क्या हैं कि लैंग्वेज इज अ कम्बिनेशन ऑफ फोन्स, ग्रामर एंड मीनिंग एंड pragmatics एंड सिंटैक्स. जबकि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर यू वुड यू टेंड टू गो
deeper into the situation where certain language is utilized. सो आई होप आपको ये बात समझ आई है। अगर आपको समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क उज़मा। आपने मुझे कुछ ऐसी एक चीज़ भिजवाई थी बेटे, इफ़ यू वुड लाइक टू पुट योर थॉट्स इन इट। और या उज़मा के अलावा कोई भी जो अवेलेबल है, यू कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट दिस स्लाइड, यू कैन कमेंट ऑन इट, यू कैन टेल मी योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। जी बेटे। सर इसमें से जो समझ में आ रहा है वो ये कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक बेसिकली जो एक्सप्रेशंस होते हैं या सिचुएशन जो होती है उसमें जो हम बात करते हैं तो उसकी स्टडी को अप्लाइड लिंग्विस्टिक कहा जा रहा है। जैसे मतलब आपने कहा कि हेलो ग्रीटिंग है बेसिकली, लेकिन कभी किसी सिचुएशन में हेलो एज अ वार्निंग भी यूज होती है, हेलो एज अ सस्पेंशन भी यूज होता है, और तो हेलो गुस्से में भी यूज हो जाता है। तो बेसिकली उस चीज को जो एक्सप्रेशन से इमोशंस हैं उसको शायद अप्लाइड लिंग्विस्टिक कहा जा रहा है। मुझे जो समझ। यस, वेरी गुड, शाबाश, आपको बिल्कुल सही समझ आई। जब वर्ड हेलो को हम स्टडी करेंगे तो यू आर स्टडिंग, अगर उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स का जिक्र करना है तो आप उसके फोन्स का जिक्र करोगे, ठीक है। और उसकी ग्रामर का जिक्र करोगे और उसके स्पेलिंग्स का जिक्र करोगे और उसके मीनिंग्स का जिक्र करोगे। बट व्हेन यू मूव ऑन टू अप्लाइड फॉर्म, सो अब लिंग्विस्टिक्स आपने अप्लाई करनी है किस किस जगह पर। इसी एक वर्ड हेलो को आपने सोसाइटी के अंदर करेंगे तो सोशल लिंग्विस्टिक्स बन जाएगी, साइकोलॉजी के अंदर करेंगे तो साइको लिंग्विस्ट बन जाएगी, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में करेंगे तो न्यूरोलॉजी से रिलेट कर लेंगे, एथनो लिंग्विस्टिक्स से करेंगे तो मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एप्लीकेशन है लिंग्विस्टिक्स की। अब आपको मैंने हमेशा से ये एक चीज़ बताई है कि वर्ड्स डोंट कैरी मीनिंग्स। ये जो वर्ड्स थे, ये थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स तक आप जब रहेंगे तो ये इनका मतलब है। फॉर एग्जांपल, कैट क्या होती है, डॉग क्या होता है, टेलीविजन क्या है, या टेलीस्कोप क्या है। दे डू हैव देयर फोनोलॉजी सिस्टम एंड दे हैव देयर सिमेंटिक्स एंड मॉर्फोलॉजी। लेकिन जैसे ही आप इस तरफ आते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की तरफ, तो इसकी एप्लीकेशन का जिक्र किया जाता है। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज, उधर मैंने अभी थ्योरेटिकल में यूज़ किया टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप एक ऐसा आला है जो कि दूर देखने के लिए काम आता है। लेकिन जैसे ही आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में आए तो आप किसी को कहते हो तुम मुझे क्यों टेलीस्कोप लगा के देख रही हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज मोर ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक। यार ये अच्छी बात नहीं है कि आज से मुझे घूरियां मार रहे हैं, टेलीस्कोप क्यों लगाया ऊपर मेरे ऊपर, ठीक है। तो जी सर। और बिल्कुल इसी तरीके से थ्योरेटिकल में बात करेंगे तो रडार कोई और चीज़ होता है, लेकिन इधर आ कहेंगे कि तुम्हारे रडार क्यों खड़े हैं। जी सो जी। सो यू सी, थ्योरेटिकल कोई और चीज़ है और अप्लाइड कुछ और चीज़ है। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ जो मुख्तलिफ कल्चर्स में बोले जाते हैं, इनका अपना अपना एक एलिमेंट हो सकता है। जी बेटे लाइबा। सर मुझे इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी वो याद आ गई है कि एग्जाम्पल कि जैसे पोइट्स जो होते हैं, हम्म। आप उनकी लैंग्वेज को अगर देखें, द वे दे आर डिस्क्राइबिंग अ थिंग, या कि कोई चीज किसी, जैसे आपने भी टेलीस्कोप की एग्जांपल दी ना, तो हम्म। मुझे वो एक फनी सी हमारी वो आई थिंक सबने ही वो पढ़ी हुई होगी, फर्स्ट या सेकेंड ईयर की बुक में हमारी थी। वो शायर ने अपनी महबूबा की डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से दी हुई थी कि जिसको अगर आप वाकई में ड्रॉ करो ना तो वो हिरन की गर्दन, नागिन जैसे बाल वगैरह वगैरह। हाँ। तो वो जो शाकार बन के बाहर निकलता है ना, उस पे बंदा तौबा इस्तगफार ही पढ़ सकता है। मगर बिल्कुल इस तरह, अगर बिल्कुल इस आप तरह। उसको देखो तो वो शायद एक बड़ी ब्यूटीफुल इससे पोर्ट्रे किया था, मीनिंग ये था कि बड़ा खूबसूरत है। सो हाँ। इसको हम अपनी रियल लाइफ में बड़ा आसपास देख सकते हैं। बहुत जगहों पे हम अपनी लाइफ में लिंग्विस्टिक्स की दोनों पार्ट्स को, जस्ट ये कि हमने डिवीजन नहीं की होती इस तरह से, एक
प्रॉपर थ्योरी की फॉर्म में, मगर हम इनको दोनों तरीकों से यूज कर रहे होते हैं। वेरी आप गुड। उसी सेम चीज को अप्लाई कर रहे होगे किसी एक प्रैक्टिकल फॉर्म में भी, और सेम चीज को आप एक कॉन्सेप्ट के तौर पे भी यूज कर रहे होते हैं। एक्सीलेंट। तो लाइबा बेटा यही हुआ ना, जो छोटा है, छोटे बच्चे होंगे उनको आप थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स पे ज़्यादा चलाते हो, उनको प्रैग्मेटिक्स भी बताते हो, मॉर्फोलॉजी भी बताते हो, सिमेंटिक्स बताते हो। लेकिन जैसे ही आप बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की तरफ चले जाते हैं। अब जब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में गए तो इस इनकी एप्लीकेशंस बदल जाएंगी। एप्लीकेशंस जो बिल्कुल है ऐसा ही होता है। वो डिफरेंट होती चली जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी यही है कि थ्योरेटिकल तो बहुत छोटी चीज़ है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में जब आप जाते हैं तो यू टेंड टू रियलाइज कि यार ये कुछ और चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की एक एग्जांपल और देता हूँ। कहफ, सूरह कहफ है कुरान मजीद के अंदर 16वें पारे में। अब कहफ का मतलब है गार, ठीक है। और ये उसका सूरह कहफ का मतलब हुआ गार वाली सूरत, ठीक है। दिखेगी। अब ये तो हो गया, यहां तक हो गया थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स। अब इसका एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखो। बहुत सारे लोग अपने घरों के बाहर कहफ अल कहफ लिख के लगा देते हैं, गोया वो अपने एक घर को गार की शक्ल में रिपोर्ट्रे कर रहे हैं। अब वो गार की शक्ल में क्यों है? क्योंकि उस गार के अंदर रहने वाले लोगों की अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन की थी, उनको धूप नहीं लगती थी, उनकी उनकी नीड्स को वहीं पर मीट किया जाता था। तो अब ये कौन सी एप्लीकेशन आ गई? ये इसकी साइको लिंग्विस्टिक के तहत इसकी एप्लीकेशन आ गई। दूसरी तरफ चलें, इसी लफ्ज को समझें अगर सोशल लिंग्विस्टिक्स फॉर्म में, तो जिस शख्स ने अपने घर के बाहर अलकहफ लिखा, उसने यही कहा कि यार मैं दुनिया से बेजार हूं, ये मेरा अपना एक फ्री स्पेस है मेरी। दिस इज वेयर आई फील सेफ। आई डोंट वांट टू गेट इन टू द वर्ल्ड फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, मैं फिलहाल बाहर नहीं आना चाहता। सो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो तो इतने खूबसूरत लिंग्विस्टिक्स में इतनी खूबसूरती आ जाती है कि, और ये चीजें बच्चा नहीं समझ सकता, छोटा बच्चा। तो जैसे मैं आपको हमेशा वो एग्जांपल देता हूँ माँ वाली, तो माँ वाली बच्चा जो है वो तो थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक समझेगा, अम्मी को ही माँ कहेगा। लेकिन आपको पता चलेगा सोशल लिंग्विस्टिक के तहत आप हर एक को माँ कह रहे होते हैं। साइको लिंग्विस्टिक्स के तहत आपकी जिस जिस शख्स से जरूरत होती है उसको अपनी माँ बना लेते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एथनो लिंग्विस्टिक्स की एप्लीकेशन इसी तरीके से हैं, जियो लिंग्विस्टिक्स की भी इसी तरीके से हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस बेसिकली। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैंग्वेजेस को समझना चाहते हैं इन सोशल फॉर्म्स, इन साइको फॉर्म्स, इन एथनिसिटी फॉर्म, इन जियो लिंग्विस्टिक्स फॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनके लिए फिर लैंग्वेज को अप्लाई करना होता है। तो लिंग्विस्टिक्स एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि चूंकि हम तो स्पीच थेरेपिस्ट बन रहे हैं, तो हम स्पीच थेरेपिस्ट बनने के नाते थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को तो ज़रूर टच करें, बट समहाउ एक और लेवल पे जाकर आपको इसको अप्लाइड फॉर्म में भी लेकर जाना होता है। और वो अप्लाइड फॉर्म जो है उसमें इंसान जो है सोसाइटी के अंदर उसी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जस्ट इमेजिन द वे वी आर टॉकिंग नाउ, वी आर अप्लाइंग लिंग्विस्टिक्स। We are actually not concerned about how a word is made and what does the word mean. So it is the accent, it is the situation, it is the psychic condition of the person. तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर रिलेट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ देख लेते हैं। एक किसी को कहा जाता है कि किसी को गाली दी जाती है, किसी को बुरा भला कहा जाता है। तो जब आप उसकी फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे, सिमेंटिक्स देखोगे तो बिल्कुल ठीक होगा, मॉर्फोलॉजी भी ठीक हो, प्रैग्मेटिक्स के हिसाब से बुरा होगा, चलो भाई गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन सिंटेक्स के हिसाब से वो आपको ठीक लग रहा होगा।
लेकिन जब आप इधर आएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक्स, तो आप कहेंगे यार नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बच्चे बैठे हैं, आप गालियां निकाल रहे हैं, बहनें बैठी हैं, आप गालियां निकाल रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? सोशियो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, तुम कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हो? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? ऑल फॉल बक रहे हो? होश में हो? न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। एथनो लिंग्विस्टिक्स, ये तुमने कहाँ से सुना है? हम तो ये नहीं बोलते बातें। तो आप जरा गौर करो कि, हाँ, जैसे जियो लिंग्विस्टिक्स में देखें, आजकल कल मैं अपने भांजू भतीजों के साथ बैठा हूँ तो गेम खेल रहे, तो वो इंग्लिश वाली गालियां दे रहे, तो मैं कहा यार तुम इंसान हो क्या चीज हो? व्हाट आर यू टॉकिंग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल विद अस इन सोशल फॉर्म, साइकोलॉजिकल फॉर्म, ये हमारे। लेकिन वो चूंकि अमेरिका से रह गया तो उसकी जुबान पे वो सारे लफ्ज चढ़े हुए हैं। मुझे कहते नहीं यार, दिस हमारे यहाँ भी आप जरा गौर करें कि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो वी कैरी इन आवर जियोलॉजिकल सिचुएशंस। बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिनका जिया, अब जो खेतों में काम करते हैं उनकी वोकैबलरी आपसे डिफरेंट है, और जो इसी तरीके से शहरों में रहते हैं उनकी वोकैबलरी डिफरेंट है। आई होप आपको समझ आई है। ये, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? फिर आपका कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, मेरे जो लास्ट एग्जांपल है वो फॉल इनटू द सोशल लिंग्विस्टिक्स। ये जो आपको अब्यूज वाली बताई है, नो नो, नॉट अब्यूजर, ये गाली वाली, किसान वाली। गाली वाली बताई है ना लास्ट? किसान, ना ना, किसान की सर। किसान का किस, आपने जब बोला, किसान यू की, आई अच्छा थिंक यू अच्छा कोट अच्छा, इट इन द जियो। अच्छा अच्छा अच्छा, किसान वाली सोशल में भी आएगी, यस। फॉर एग्जाम्पल ये साइको में भी आएगी पुत्र, साइको में भी आएगी, जो आज बोओगे वही काटोगे। ठीक है, जो आज बोओगे, इन्नमल यस। अमालु बिन्नियात, साइको लिंग्विस्टिक्स। बात समझ आई? साइको लिंग्विस्टिक्स। यस दुनिया, दुनिया जन्नत की खेती है। तो ये आप समझे ना इन चीज़ों को, तो ये सारी की सारी वो अप्लाइड में आती हैं। उसको आप जहाँ मर्जी डाल दें। सो कहने का मकसद ये है, दीज आर वेरी ब्यूटिफुल concepts of linguistics that we need to understand. It's a very broad subject. लैंग्वेज बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, और हमेशा मैंने इसको एडमायर किया, बिकॉज द मोर यू मूव इन टू इट, द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू डेवलप अबाउट द वर्ल्ड। सो मैंने यही रियलाइज किया है कि लैंग्वेज इज द टूल विच एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड योर सराउंडिंग्स, द पीपल अराउंड यू, योर बुक्स, योर नॉलेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप यूज़ ही तब कर सकते हैं जब आप इन तमाम, आज मज़े की बात सुनो ना, बोलते तो हम सारे हैं, ठीक है, यानी थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स के तहत ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन अप्लाइड लिंग्विस्टिक के तहत बहुत सारे कम लोगों के पास बहुत सारी बहुत कम चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, जिस ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या चीज़ है? ये शेरो व शायरी क्या चीज़ है? ये ईडियम्स क्या चीज़ें हैं? सर बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वंस कॉन्सेप्ट, हाउ अ पर्सन इज परसीविंग द वर्ल्ड अराउंड हिम यस, सो एंड दैट हाउ मीन, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इनटू हाँ, द वर्ल्ड। सो दैट मीन्स ही इज अप्लाइंग। ही, अब उसकी बात सबको समझ नहीं आएगी, छोटे बच्चों को शेर समझ नहीं आएगा, छोटे बच्चों को मेटाफर्स नहीं समझ आएंगे, इडियम्स नहीं समझ आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, इट्स अ हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और ये कितना हायर जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हिमसेल्फ। लैंग्वेज बहुत खूबसूरत चीज़ है बेटे, आप लोगों को, यू मस्ट इन्वेस्ट इन टू इट एज अ प्रोफेशनल, एज अ ह्यूमन बीइंग। और अल्लाह माहुल बयान ना, अल्लाह ताला ने आपको बात करना सिखाया है, तो ये बात करनी आपको आनी चाहिए। तो अल्लाह भी तो बार बार कहता है ना कि वहाँ पर नहरें बह रही होंगी, वहाँ पर हूरें होंगी, वहाँ पर सब्जा होगा, वहाँ पर, सो ही इज ऑलरेडी यूजिंग मेटाफर्स, और ऐसी सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो आपने देखी ही नहीं है। तो वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो बगैर देखे
आप उनको फील करना शुरू कर देते हैं। ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का कमाल है। फरिश्ता कैसे होगा, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू अप्लाई लिंग्विस्टिक्स। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, जन्नत क्या है, दोजख क्या है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। सो इसके ज़रिए, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के ज़रिए, वी डेवलप कंस्ट्रक्ट्स, और फिर उन कंस्ट्रक्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, जिसकी वजह से वो हमें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाते हैं, एंड वी स्टार्ट फीलिंग अबाउट दैम। जैसे जस्ट इमेजिन इमली। अब इमली की बात करें तो क्या हो रहा है, ये जो इमली है इसका ताल्लुक किधर से कहाँ आपकी नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर दिया हमने इमली को। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से अ, कोई नेगेटिव वर्ड है आपके लिए, तो वो आपको गुस्से में कन्वा आपके इमोशंस को छेड़ देता। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, इट्स ब्यूटीफुल। ईद का मतलब आपको समझ आता है क्योंकि ये एथनो लिंग्विस्टिक्स है। समझ आ रही है? ईद हो गया, शब रात हो गई, मुहर्रम हो गए, ये इनका ताल्लुक एथनिसिटी के साथ है, इनका ताल्लुक जियो लिंग्विस्टिक्स के साथ है। ठीक है। लेकिन ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, ये सारे के सारे आपके बायोलिंग्विस्टिक वर्ड्स हैं। अब डायबिटीज, अब डायबिटीज को फोनोलॉजी भी हम देख लेंगे, फोनेटिक्स भी देख लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। देन व्हाट इज HB1AC? अब HB1AC जिसमें आपकी 3 मंथ्स का जो डायबिटिक सिचुएशन है वो सामने आती है। नाउ दिस इज अ बायोलिंग्विस्टिक वर्ड, इसके साथ बायोलॉजी रिलेटेड है। It's beautiful. I hope you understand. But this is enough for you for the time being. Do we have any questions before we move on? डॉक्टर साहब आप बैठे हैं ना? यस सर। डॉक्टर साहब बोले ना, प्लीज कोई मशवरा दें, कोई चीज हम और बताएं अपने एक्सपीरियंस से। लैंग्वेज खत्म भी हो सकती है, क्या? मतलब कोई लैंग्वेज खत्म भी हो सकती है कि उसका वजूद ही ना बचे। यस, लैंग्वेजेस खत अब मुझे आपकी आवाज़ पूरी सही समझ नहीं आई, लेकिन जो मुझे समझ आई मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मैं समझाऊँ कि आपने सवाल ये किया कि क्या वोकेबलरीज ख़त्म हो जाती हैं, क्या वर्ड्स ख़त्म हो जाती हैं। यस, लैंग्वेज के अंदर ये टेंडेंसी है कि लैंग्वेज जब यूज़ नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली रिडंडेंट हो जाती है, यूज़लेस हो जाती है, लोग उसको छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको आपको याद होगा, आप किसी जाए ना ट्रेडिशनल किस्म के रेस्टोरेंट पे, वहाँ लिखा होगा चाटी की लस्सी। अब हमें बला हमारी बला जानने के चाटी की लस्सी क्या होती है, हाँ, लेकिन वो लोग जो चाटी की लस्सी पीते थे, दे हैव गॉट एन एसोसिएशन विद इट, और वो वही पीना चाहते हैं। कितना जबरदस्त! उसने सिर्फ लिख के रखा हुआ, बैठा हुआ सिंध में, और उसने लिखा हुआ लाहौरी नान चने। या हमारे पास बिकती है कराची की निहारी। जस्ट इमेजिन। सो व्हाट इज दिस? ये हमारी जो साइको लिंग्विस्टिक्स है उसको यूटिलाइज करते हैं, हमारी जो सोशल लिंग्विस्टिक्स है उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये ऐसे नाम रखे जाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट अट्रैक्ट किया किया जा जाए। सके और उनसे बिजनेस किया जा सके। इट्स ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस। और मैं ज़रा अब आगे चलना चाहता हूँ बेटे, एक सफ़ा, काफ़ी हमने बात की है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। कैन यू सी इट? ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो तीन इसकी टाइप्स हैं। जनरल लिंग्विस्टिक्स है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, और अगला है हमारे पास थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स। जबकि अगर इसको ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो उसको मैक्रो लिंग्विस्टिक्स कहेंगे, और मैक्रो में आप बड़ी बात करते हैं। सो दीज आर ऑल मैक्रो लिंग्विस्टिक फॉर्म। और नीचे वाली जो है ना, ये माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट में आती है। लेकिन जो इसमें हमने चीज़ नहीं पढ़ी ना, वो हमने अभी तक फोनेटिक्स का जिक्र नहीं किया, और अभी तक हमने गालबन शायद फोनेटिक्स का ही जिक्र नहीं किया।
अब फोनेटिक्स क्या चीज है? कैन समबडी टेल? कैन समबडी शेयर? सर स्टडी ऑफ साउंड। ओके, आई टेल यू, कोई बात नहीं। फोनेटिक्स is the branch of science which deal with the production of sound, propagation of sound, and perception of sound. 3 P's आते हैं इसके अंदर। फोनेटिक्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस कैसी हो रही है, साउंड जो है वो प्रोपोगेट कैसे हो रही है, आगे कैसे चलती है, जिसमें आप फिजिक्स ऑफ साउंड पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स ऑफ साउंड जो वेव्स का जिक्र किया जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से तीसरे नंबर पे है परसेप्शन ऑफ साउंड, हाउ आर दीज साउंड्स हर्ड एंड हाउ आर दे इंटरप्रेटेड। इसका नाम है परसेप्शन। तो हेयरिंग तो रिसीव करती है, और आपका ब्रेन जो है वो उसको परसीव करता है। तो साउंड प्रोडक्शन से लेकर और परसेप्शन तक के जो मरहले हैं, इन तमाम को हम फोनेटिक्स में डील करते हैं। सो वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी कॉज साउंड। दिस साउंड इज travels with the help of a medium. Usually the medium is air. सॉलिड्स में ज़्यादा अच्छी ट्रांसमिट होती है, लिक्विड में थोड़ी कम, और गैसेस में या एयर में सबसे कम ट्रांसमिट होती है। लेकिन एज इट रीचेज द ईयर, ईयर जो है वो उसको डिटेक्ट करता है, कन्वर्ट करता है उस साउंड एनर्जी को, पहले मैकेनिकल एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी से इम्पल्सेस में कन्वर्ट होती है साउंड, और फिर वो ब्रेन में जाती है इम्पल्सेस के फॉर्म में, जहाँ पर आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है वो उसको प्लेजेंट या अनप्लेजेंट साउंड के तौर पर परसीव करता है। राइट। सो ये हमने फोनेटिक्स के अंदर जो पहले जिक्र नहीं किया हुआ था, मैंने अभी जिक्र कर दिया। जो फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं लिंग्विस्टिक्स के। बट दीज आर ऑल साइंसेज बेटे, दिस 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 इज नॉट सिंपल। कहने को तो ये बहुत सारी सिंपल लगती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि आपकी जहाँ और बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, वहां पर वॉइस भी आपकी आइडेंटिटी है। योर वॉइस इज योर आइडेंटिटी। जस्ट जी इमेजिन, सर। आप में से किसी की भी आवाज आज बदल जाए तो मुझे फौरन पता चल जाएगा कि यार व्हाट हैपेंड टू यू। सो आपकी फेस रिकग्निशन, आपकी आंख का जो आइरिस है उसकी रिकग्निशन, आपके फिंगरप्रिंट्स के अलावा आपकी वॉइस जो है वो आपकी रिकग्निशन है। बहुत सारे जो अब तो ये है कि आप मेरी तरह, अगर आप मेरे आवाज के डायनामिक्स को समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप मेरी तरह आवाज पैदा कर सकते हैं कंप्यूटर से। सो दिस इज, आजकल आपने टेक्नोलॉजी में ये चीजें देख ली हैं कि किस तरीके से आवाजों को ओवर प्ले कर दिया जाता है। तस्वीर कुछ और, उसके पीछे आवाज कोई लगा के तो फेक कर दिया जाता है, और आप उसको वही समझते। दिस वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ फोनेटिक्स। सो ये कितनी बड़ी, आई विश कि आप लोग बल्कि ज़रूर इसको परसू करें, फोनेटिक्स के अंदर जाएं, साइंटिस्ट बने, आवाज़ें बनाएं, लोगों की आवाज़ों को स्टडी करें। मेरा पता क्या दिल कर रहा है इस वक्त? मेरा दिल कर रहा है, इफ आई कुड मैयर पेन इन द वॉइस। डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है, आवाज़ में पेन होता? जी सर, बिल्कुल होता है। व्हाई कांट वी मैयर इट? आवाज़ में एक्साइटमेंट होती है, होती है, कैसे मैयर करें? आवाज में रिक्वेस्ट होती है, इल्तिजा होती है, बेबसी होती है। हाउ कैन वी मैयर इट? ठीक है, आवाज में गुस्सा होता है, इमोशंस है। आई होप यू कैन, आप मेरे से रिलेट कर सकते हैं। मे बी आई एम टॉकिंग टू मच टुडे, लेकिन हाँ सर। जी सर, ऐसे ही है। दिस इज व्हाट फोनेटिक्स इज। जी। यार जरा आप गौर करें ना, आप गौर तो करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
जबरील को जहमत देने की क्या जरूरत थी? ये सीधा ही आपकी मेमोरी में डाल दिया जाता, सीधा ही आपके दिल पे कुरान को नाजिल कर दिया जाता। कुछ समझ आई आपको? फोनेटिक्स का इस्तेमाल किया गया, कानों का इस्तेमाल किया गया, जी। जबरील की आवाज का इस्तेमाल किया गया। और जबीर वो जबरील की आवाज नहीं थी, वो मैसेज लेके आए थे। वो मैसेज लेके आए थे, फिर वो जिसका मैसेज लेकर आए थे उसी की आवाज में, उसी की फोनेटिक्स में, उसी की फोनोलॉजी में, उसी के लहजे में कुरान को नाजिल किया गया, और फिर वो दिल पे असर करता चला गया। तो फोनेटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है यार। आई विश कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें। ये खास तौर पे जो ये हमारे साइकोलॉजी वाले साहब बैठे हैं, यार प्लीज, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो ये तो खैर हमारा अब लेक्चर ख़त्म होने वाला बेटे। उससे पहले आपने कोई क्वेश्चन करना तो कर लीजिए, इसके बाद मैं ये डिस्कस करूंगा आपके साथ जनरल, हिस्टोरिकल और थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स के बारे में। जिसे आवाज की टोन पिच से आइडिया हो जाए, तो ऐसा हो सकता है जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना लें जिसमें मतलब आवाजों को कि ये आवाज है, इतनी पिच है, इतने थ्रेशोल्ड से आई है, तो उसका ये मतलब उसका मीनिंग ये है। उसका क्योंकि ये तो इम्पैक्ट ये हम है। किसी भी आवाज में यस, यस, यस। किसी भी आवाज में बोल देते हैं ना हेलो, तो ये हम्म, हम किसी को मतलब बुलाने के लिए, या हम गुस्से से भी कह सकते हैं हेलो, मतलब किसी को स्टॉप करने के लिए भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब हम्म। सिचुएशनल है। तो ये सर पहले से फिर डिफाइंड होगा, इस पे ये चीजें वर्क हो सकता है इस पे अगर किया जाए तो, या कोई ऐप ऐसी डेवलप की जाए कि जो इन चीजों को थोड़ा सा मेजर करे। मतलब बहुत एक्यूरेसी तो नहीं होगी, डेफिनेटली कल्चर टू कल्चर ये चीजें वेरी करेंगी, लेकिन एक स्पेसिफिक कल्चर के लिए ये चीजें हो सकती हैं। शाबाश, बिल्कुल हो सकती हैं। ये कल्चर के बियॉन्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि अगर अगर ट्रांसलेट आप किया जाए इन्वेस्ट करेंगे, या उनके कल्चर से। जी जी। इफ यू इन्वेस्ट इन द राइट फॉर्म, दिस इज व्हाट रिसर्च इज। तो ये सारे के सारे हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं। कंस्ट्रक्ट एक ऐसी जी चीज जी। होती है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लाइक एंगर है, ऐसे। लाइक प्यार है, लाइक वो बड़ी प्यार भरी आवाज में बोला। अब वो प्यार भरी आवाज में कितना प्यार था ये मैयर करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस जी प्यार के सर। कॉन्स्ट्रक्ट के तौर पर जब आप रिसर्च करेंगे, यू विल बी यू विल टेंड टू फाइंड आउट कि उसका ग्रेड क्या था। 3 ग्रेड था, 4 ग्रेड था,